Good morning, 12th class. How are you all? Hope you all are good. So, class, we were on chapter number 7, an imperial capital, Vijayanagar. We did talk about this empire in detail regarding its few important rulers, and then we talked about many other aspects of this empire. And in our last class, we were talking about the royal center, and we talked about the major buildings in the royal center, स्पेसिफिकली महानवमी डिब्बा के बारे में, ऑडियंस हॉल, लोटस महल एंड देन जो हजारा राम टेम्पल है उसके बारे में हमने पढ़ लिया था. So today we will be starting with the sacred center. Okay, so now we will be talking about few buildings related to the, you can say, जो religious beliefs है उससे related, and why was their construction important, how was their construction done, and what were the reasons behind it. Okay, so let us now start with this topic. So to start with, we'll see that this is an area, the विजयनगर एम्पायर की अगर हम बात करें तो रॉकी इसमें नॉर्दर्न एंड है सिटी में, और टुवर्ड्स द बैंक ऑफ तुंगभद्रा हम देखेंगे दिस इज द एरिया दैट इज लोकेटेड. Now, why did they choose this area as the main center? There was two major reasons as told to us by the historians. तो जो स्पेसिफिक वाला फर्स्ट रीजन है वो ये है कि ये वाले जो हिल्स है, ऐसा माना जाता है यही हिल्स हैं जहाँ पे जो मंकी किंगडम था और वाली और सुग्रीव जो रामायण में मेंशन्ड है वो यहीं पे लोकेटेड था. इफ यू ऑल हैव आइडिया ऑफ रामायण, यू मस्ट बी नोइंग कि सुग्रीव और वाली की एक वॉर हुई थी, बैटल हुआ था, इन विच लॉर्ड राम एंड हनुमान ऑल्सो प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और पूरी एक स्टोरी है उससे रिलेटेड रिगार्डिंग लॉर्ड, हाउ डिड लॉर्ड रामा हेल्प, एंड देयर वाज लॉर्ड हनुमान एंड वाली और सुग्रीव कैसे डील थे, एंड फाइनली सुग्रीव वाज, हाउ वाज ही एबल टू विन ओवर द किंगडम. ठीक है, तो एक ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इस एरिया को इम्पोर्टेंट माना जाता था. सेकेंड एक और जो सजेशन है वो ये है कि यहाँ की जो लोकल गॉडेस है पंपा देवी, it was considered that she did penance and meditation so that she could get married to the guardian deity of this kingdom, that is Virupaksh. ठीक है, तो इस point of view से इस एरिया को important माना जा रहा है. Here we should know one more thing कि जो विरूपक्ष हैं इनको एसोसिएट किया जाता है with Lord Shiva. Okay, this is one thing that you need to keep in your mind. Now, till today, this day of marriage of Pampa Devi and Virupaksha, jo, it is considered very important, and annually it is celebrated, and it is celebrated in big way with lot of pomp and show. Okay, so among these hills, not only these temples are important, but along with this हमें कुछ जैन temples भी मिलते हैं which were basically constructed in the pre-Vijayanagar period. एंड अलॉन्ग विद दैट हमें बहुत सारे और भी सेक्रेट ट्रेडिशन की बिल्डिंग्स मिलती हैं इन दीज एरियाज. कौन सा, जिसको हम सेक्रेट सेंटर मानते हैं. ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द टेम्पल बिल्डिंग. तो हम देखेंगे कि इस एरिया में जो टेम्पल बिल्डिंग है उसकी बहुत लंबी हिस्ट्री है इन टर्म्स ऑफ कि विजयनगर एम्पायर से पहले जो डायनेस्टीज थी, स्पेसिफिकली चोलास, पल्लवास, चालुक्यास, ये सारे जो है they were also very good at temple building. So they often encourage temple building, and always they try to associate themselves with the divine by building these huge temples. So often जो gods हैं या deity हैं उनको कैसे ना externally या through kind of divine relation with the ruler हमेशा associate करने की कोशिश की जाती थी. Temples जो है they always function as important centers of learning, and rulers granted lot of land, lot of other resources for the maintenance of these temples, because जो temple का importance है that was important for the king to show that they were more powerful and gain more acceptability. Okay, now अगर हम इसी से related देखें, temples जो है वो religious, social, cultural और economic point of view से डेवलप हो गए थे और सेंटर बन गए थे ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज, चाहे वो रिलीजियस हो, सोशल हो, कल्चरल हो या फिर इकोनॉमिक हो. नाउ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द रूलर्स, कंस्ट्रक्टिंग, repairing and maintaining temples was very important, as I already told you, for winning support of the people and also for
recognizing themselves as more powerful, because the more good the temple is, the more big the temple is, the more splendid the temple is, it will show that you are also more powerful in terms of जैसे आपका temple big, huge और magnificent form में बना हुआ है. ठीक है, तो दो ways है to gain acceptability, to win support of the people and to show that they are very very powerful. And it is likely कि विजयनगर एम्पायर को ही सबसे इम्पोर्टेंट सेंटर क्यों माना गया है या कैपिटल एरिया क्यों माना गया है, वो है बिकॉज यहीं पे विरूपाक्षा और जो पंपा देवी हैं उनकी श्राइन जो है दैट इज लोकेटेड. ओके, एंड देन अलोंग विद दैट हम ये देखेंगे कि जो विजयनगर एम्पायर के रूलर्स हैं दे यूज्ड टू क्लेम दैट दे आर रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ द गॉड विरूपाक्ष. So again associating themselves with the god directly or indirectly. कि they are not ruling on themselves, they are ruling on behalf of god Virupaksh जो यहाँ के main deity थे. All the royal orders were signed in the name of Virupaksh. ठीक है, usually in Kannada script. यानी जो भी रॉयल रूल्स या ऑर्डर्स पास होते थे वो किसके नाम से साइन होते थे, गॉड विरूपक्ष के नाम से, नॉट बाय द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर किंग, और कन्नड़ स्क्रिप्ट में होते थे. रूलर्स जो है वो अपने आप को बहुत क्लोज लिंक में एसोसिएट करते थे विद द गॉड, इसलिए उनको टाइटल दिया हुआ था हिंदू सूरत राणा, जो कि संस्कृताइजेशन था ऑफ द अरबिक वर्ड सुल्तान, बिकॉज एट दैट टाइम सुल्तान वर रूलिंग ओवर द मेजर पार्ट ऑफ इंडिया, तो उसको संस्कृत टर्म करके यूज कर लिया था और लिटरली इसका मतलब था हिंदू सुल्तान. ठीक है, सूरत राणा का. नाउ मतलब यहाँ पे अगेन कीप इन ट्रैक एंड कीप इन माइंड कि गॉड को एसोसिएट किया जा रहा है. इवन एज दे ड्रू ऑन अर्लियर ट्रेडिशन, द रूलर्स ऑफ विजयनगर जो है पुराने ट्रेडिशन में नए नए इनोवेशन ला रहे थे. उसमें रॉयल पोर्ट्रेट स्ट्रक्चर्स जैसे बनवा रहे थे, स्कल्पचर्स बनवा रहे थे जो टेम्पल्स में डिस्प्ले किए जा रहे थे रूलर्स वगैरह की. ठीक है, और जब भी कोई किंग विजिट करता था इन टेम्पल्स को तो उसको बहुत बड़ी तरीके से सेलिब्रेट किया जाता था एज एन इम्पोर्टेंट ओकेजन. और इन जो राजा होता था, जो राय होते थे, जो किंग्स होते थे, उनको उनके साथ साथ कौन रहता था इस टाइम पे, जो नायक होते थे, टू शो दैट ही इज मोर इम्पोर्टेंट एंड he is accompanied by other powerful people as well of the empire. Okay, so this was if we talk in terms of कि कैसे क्या क्या कैपिटल. सबसे पहले तो विजयनगर को क्यों कैपिटल माना गया, क्यों इसकी इंपॉर्टेंस थी, एंड कैसे वो एसोसिएट करते थे खुद को गॉड से. इसी टाइम का अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है गोपुरम एंड मंडप, जिसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं. सो इन टर्म्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इस पीरियड में हम देखेंगे बहुत सारे नए फीचर्स ऐड हुए थे. दीज इंक्लूडेड स्ट्रक्चर्स ऑफ इमेंस स्केल दैट मस्ट हैव बीन मार्क ऑफ इंपीरियल अथॉरिटी, यानी बहुत बड़े बड़े रूप में इसमें चेंजेस लाए थे, बड़े स्ट्रक्चर्स इंट्रोड्यूस किए थे टू शो दैट दे आर मोर पावरफुल और इंपीरियल अथॉरिटी को दिखाने के लिए. जिसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अपने पास है गोपुरम, जो थे रॉयल गेटवेज. इतने बड़े होते थे ये कि जो मेन श्राइन होता था वो बहुत बार क्या लगता था, उसके सामने छोटा लगने लग जाता था. एंड समवेयर ये जो गोपुरम्स इतने बड़े होते थे कि पहले से ग्रेट डिस्टेंस से आपको पता चल जाएगा कि आगे जाके टेम्पल है. एंड ये जो है प्रोबेबली एक तरीके से राजा के पावर के भी रिमाइंडर थे, और ये दिखाते थे दैट द किंग वाज वेरी पावरफुल, he could command, he has the command over lot of resources of that area. टेक्निकली भी बहुत पावरफुल है क्योंकि वो बनवा रहे थे ये गोपुरम. इतने स्किल थे कि ये गोपुरम्स इतने बड़े होते थे, इनमें बहुत अच्छी एनग्रेविंग्स होती थी. एंड हम बोलेंगे एक डिस्टिंक्टिव फीचर अगर इनके ये जो पूरा टेम्पल एरिया इसका देखेंगे तो इनमें मंडप्स होते थे और पेविलियंस होते थे, मंडप्स और पेविलियंस. इसके साथ साथ लॉन्ग पिलर कॉरिडोर्स होते थे जो पूरे टेम्पल कॉम्प्लेक्स में बड़े बड़े ये पिलर्स होते थे. एंड दीज वर शोइंग हाउ ग्रेट एंड हाउ बिग दीज टेम्पल्स वर. ओके, एंड सिग्निफाइंग द इम्पोर्टेंस कि लोग आके वहां पे कैसे वर्शिप करते थे. दो एग्जाम्पल लेंगे हम, विरूपाक्षा टेम्पल और विट्ठल टेम्पल का. सो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट द विरूपाक्ष टेम्पल which was built over centuries. ऐसा सजेस्ट किया जाता है इंस्क्रिप्शंस के थ्रू
कि सबसे फर्स्ट श्राइन जो है वो 9th-10th सेंचुरी के अराउंड बनी थी। बहुत ज्यादा एनलार्ज इसको बाद में किया गया विजयनगर एम्पायर के टाइम पे। जो हॉल है फ्रंट में मेन श्राइन का, वो किसने बिल्ड किया था? कृष्णदेव राय ने। रिमेंबर टू मार्क हिज असेशन कि अब वो राजा बन गए हैं, ठीक है। नाउ ही इज सिटिंग ऑन द थ्रोन एंड he was the next successor. He is the ruler of Rai of that ruler. This was decorated with delicately carved pillars. बहुत अच्छे से कार्व किए हुए थे और ऐसा माना जाता है कि कृष्णदेव राय ने ही ईस्टर्न गोपुरम भी बनवाया था। और इसके साथ साथ ये जो एडिशंस हुए हैं, इसके कारण जो सेंट्रल श्राइन है वो एक बहुत छोटा एरिया बन गया था कॉम्प्लेक्स का, क्योंकि पहले एक छोटा एरिया था, फिर उसके अराउंड गोपुरम्स बना लिए, इतने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन बना लिए। इसीलिए जो हॉल होते थे टेम्पल में, दे वर यूज फॉर वेराइटी ऑफ पर्पसेस, अलग अलग पर्पस के लिए यूज होते थे हॉल्स जो होते थे। बहुत सारी स्पेस होती थी जहाँ पे इमेजेस रखे जाते थे गॉड के। स्पेशल प्रोग्राम्स के टाइम पे गॉड, ऐसे लगता है कि गॉड उन प्रोग्राम्स को देख रहे हैं, चाहे वो म्यूजिक हो, डांस हो, ड्रामा हो। Others were used to celebrate the marriage of the deities. ठीक है, हमने पढ़ा है जैसे फॉर एग्जांपल जो विरूपक्ष और पंपा देवी डेटी की मैरिज को सेलिब्रेट करते थे। इसके अलावा कहाँ पे कहीं कहीं पे डेटीज के स्विंग करने की जगह भी थी। स्पेशल इमेजेस जो होती थी डिस्टिंक्ट स्मॉल सेंट्रल श्राइन में जो रखी होती थी, उनको सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स में लाया जाता था एज एन इम्पोर्टेंट मार्क ऑफ दैट गॉड और टू मार्क दैट सेलिब्रेशन एज मोर ब्यूटिफुल। ठीक है, ये तो हो गया when we are talking about the विरूपक्ष टेम्पल। अब हम बात कर लेते हैं about the next temple and the next temple is our विठल टेम्पल। विठल टेम्पल भी बहुत इंटरेस्टिंग एक मॉन्यूमेंट है। प्रिंसिपल डेटी विठल है, जिनको एसोसिएट किया गया विष्णु से। विष्णु जो वर्शिप किए जाते थे महाराष्ट्र में। तो जस्ट अंडरस्टैंड, विरूपक्ष जो हमने पढ़ा था वो एसोसिएटेड थे लॉर्ड शिवा से और विठल एसोसिएटेड है लॉर्ड विष्णु से ऑफ महाराष्ट्र। तो ये जो इन डेटी का जो वर्शिप इंट्रोडक्शन हुआ है इन कर्नाटका, ये हमें बताता है कि जो विजयनगर के रूलर्स थे वो अलग अलग ट्रेडिशंस को ला रहे थे अपने इंपीरियल रूल के अंडर और उसको कंटिन्यू कर रहे थे वर्शिप, क्योंकि महाराष्ट्र के जो डेटी हैं उनके भी ये इम्पोर्टेंट टेम्पल्स थे। एज इन केस ऑफ वन अदर टेम्पल हम देखेंगे, एज इन केस ऑफ द अदर टेम्पल्स, इस टेम्पल में भी बहुत सारे हॉर्स थे, बट एक स्पेशल यूनिक चीज क्या थी? श्राइन जो कि डिजाइन किसके फॉर्म में थी? चैरियट फॉर्म में डिजाइन थी। एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो हम देखेंगे टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस का है वो है चैरियट स्ट्रीट्स, यानी स्ट्रीट्स जो टेम्पल से स्टार्ट हो रही है गोपुरम से स्ट्रेट लाइन में, जहाँ से चैरियट्स में लोग आ और जा सकते हैं। स्ट्रीट्स पेव थे स्टोन स्लेब से और साइड में पिलर्ड पेविलियंस थे जहाँ पे मर्चेंट्स अपनी शॉप्स रखते थे ताकि विजिटर्स चीजें खरीद सके, चाहे वो रिचुअल से रिलेटेड हो, टेम्पल से हो या आने जाने से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो खरीद सकते थे। तो जैसे हमने रॉयल सेंटर में पढ़ा था कि आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द विजयनगर एम्पायर नायक्स ने कंटिन्यू किया था बड़े बड़े पैलेसेस जैसे स्ट्रक्चर बनाने के लिए, वैसे ही आफ्टर द डिक्लाइन नायक्स ने कंटिन्यू किया था ऐसे बड़े बड़े टेम्पल्स और जो ये गोपुरम्स वगैरह है ये बनानी, ठीक है, लोकल नायक। सो विद दिस वी कंप्लीट द सेक्रेड सेंटर, जिसमें हमने पहले तो ये देखा है कि क्यों इन्होंने इस एरिया को चूज किया इन टर्म्स ऑफ रॉयल, मतलब मेन इम्पोर्टेंट कैपिटल, क्योंकि कुछ एसोसिएटेड था। एक हमने पढ़ा था सुग्रीव और वाली से रिलेटेड रामायण वाला, लॉर्ड राम और हनुमान से रिलेटेड कैसे बैटल हुआ था। देन पंपा देवी और विरूपक्ष का मतलब पंपा देवी ने यहाँ पे पेनेंस किया था टू गेट मैरिड टू विरूपक्षा, और बहुत इंपॉर्टेंट है, सेलिब्रेशन अभी भी होता है। उसके बाद यहाँ के राजा जो है पहले वाले चीजों को इनोवेट करते गए, आगे बनाते गए। गोपुरम्स और मंडप्स के बारे में हमने पढ़ा और स्पेसिफिक दो टेम्पल, विरूपक्ष जो कि शिवा से एसोसिएटेड है उनके टेम्पल, और विठल जो कि विष्णु से एसोसिएटेड है उनके बारे में पढ़ा। एंड स्पेशल इनके फीचर्स चैरियट से रिलेटेड थे और चैरियट स्ट्रीट्स वगैरह भी थी, और लास्ट में नायक्स ने कंटिन्यू किया ऐसे बड़े स्ट्रक्चर्स बना। ठीक है, सो विद दिस वी कंप्लीट द सेक्रेड सेंटर
along with the royal center. अब हमारा रॉयल और सीक्रेट सेंटर होने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इन टुमारोज क्लास, फ्लोटिंग पैलेसेस, टेम्पल्स एंड बाजार्स. Okay, so we'll do this chapter and we'll continue. If you have any doubt, please come back with your doubts and we'll solve your doubts. Okay, meet you all in the next class.